Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So some of you are upset. So today I will tell a story which I learned during my PNB days. So in this story I will be telling you how one became richest man in the world. This is very interesting story, very motivating story. I will tell this story. There may be some missing links because I was told this story few years back. So from my memory lane, I will try to cover this story. So in Western world, there was one person who was highly rich, but he had no child. Now he has grown very old and he thought that now I have to transfer my wealth to some deserving person. And he started searching for such a deserving person. And he announced in his city, anyone who is deserving, he will pass on the entire wealth to that person. So there was a shepherd in that area. He thought, let me try my luck. He went to this fellow, the old man, and asked him, I want to follow your instructions. Kindly tell me how I can become rich and get your entire wealth. This old man gave him one piece of cloth and told him, go to market and sell it. This boy rode horse and went to a place where it was a marketplace. He waited till evening, no person bought his cloth. Then he started knocking the doors. The people closed the door on his head or mouth, but nobody was ready to listen him. And after trying again and again, he lost hope. And now night has struck. Now he thought, should I go back with this cloth to that rich man, or what else I should do? He started his journey back. On way, he stayed at some place that was there. In that place, one child was lying on the floor and shivering. The child was shivering, and this boy thought, I could not sell this cloth anywhere. But this child needs this cloth. I should offer this cloth to this child, and I will tell the rich man that I am unable to sell, but I have offered this cloth to this child. He put the cloth on that child, and suddenly the moonlight came on that child. And there was illumination all over there. And some people say that child was no less than God. Now this fellow went back, told the story to this rich man, how he disposed of the cloth. The rich man said, you got the highest value for this cloth, because you have offered the cloth to the deserving person. Price is not what we get in rupee terms. Price is what we give something to the person who is worthy of it. And thereafter he gave entire wealth to this shepherd, and the shepherd became the richest man in the world. So there is a lot of learning in this story. You can draw your own conclusions. We have to go on doing our efforts, and we should do our efforts
with fair means. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज आप में से काफ़ी लोग निराश हैं, परेशान हैं, कल एग्ज़ाम होके चुका है, तो आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। और ये स्टोरी हमें बैंक में सुनाई गई थी काफ़ी साल पहले, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी तरह याद हैं, कुछ भूल भी रहा हूँ मैं। तो इसको जैसे मैं सुना रहा हूँ वैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है ये स्टोरी पढ़ी भी हो तो वो कमियां भी निकाल लेंगे स्टोरी में, तो उनको मैं ये कहूँगा वो इग्नोर करें इन कमियों को, क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ये बहुत साल पहले मुझे सुनाई गई थी, वहाँ से बता रहा हूँ। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टोरी है। वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था मगर उसके कोई बच्चा नहीं था, और वो ये जब बूढ़ा हो गया तो वो सोचने लगा कि अब ये जो मेरी वेल्थ है ये मैं किसको दूं। तो उसने ऐलान किया कि जो भी इस वेल्थ को लेने का सही हकदार होगा, मैं ये सारी की सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। तो वहां पर एक गडरिया था, लड़का था, भेड़ चढ़ाया करता था। तो उसके दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना कोशिश करूं, और वो जो है इस रिच आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि सर, मैं वो काम करना चाहता हूं जो आप सौंपना चाहते हो, मुझे भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। तो वो कहता है ठीक है, ये कपड़ा आप ले जाओ और इसको आप बेच के आओ सबसे अधिक मूल्य के अंदर। अब ये लड़का घोड़े पे सवारी करके शहर की तरफ चल पड़ता है और ऐसी जगह पहुंचता है जहां मार्केट लगी हुई है। सुबह से शाम हो जाती है पर कोई उससे कपड़ा नहीं खरीदता। बहुत कोशिश करता है, कपड़ा नहीं बिकता। फिर वो कहता है चलो लोगों के घर में चलता हूं मैं। एक एक का दरवाजा खटकाता है, लोग उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई जोर से बोलता है, कोई गुस्सा करता है, और मगर दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, मगर ये कपड़ा नहीं बिकता। अब ये परेशान हो जाता है, क्या करूं, क्या मैं वापस जाऊं, किस मुंह से वापस जाऊं। मगर वो फैसला करता है मुझे वापस जाना ही चाहिए, और वो वापस चल पड़ता है। रास्ते में एक सराय मिलती है, वहां वो सोचता है मैं रात व्यतीत कर लेता हूं। वहां वो देखता है कि एक बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है और सर्दी हो रही है, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। तो वो सोचता है कि अगर अब ये कपड़ा बिका तो है ही नहीं, तो चलो इस बच्चे पे ही ढक देता हूं, कम से कम इसको सर्दी से इजाद मिल जाएगी। और वो उस वस्त्र को उस बच्चे के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो उस बच्चे पे वस्त्र को डालता है तो चांद से बहुत ही जबरदस्त रोशनी उस बच्चे पे आके गिरती है, और वो बच्चा चमचमा उठता है, वस्त्र चमचमा उठता है, और सारा का सारा समा चमचमा उठता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो ईश्वर ही थे। अब ये स्टोरी वो जाके उस वृद्ध व्यक्ति को बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी और मैंने अंत में उस वस्त्र को उस बच्चे को समर्पित कर दिया। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो बहुत खुश होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये उस व्यक्ति को वस्त्र दिया जो इसका असली हकदार है, ईश्वर को समर्पित कर दिया। तो वस्तु का मूल्य वो नहीं है कि जो हमें रुपयों में मिल रहा है, वस्तु का मूल्य वो है जो उसको इस्तेमाल करना है, जिसने उस तक वो चीज पहुंच जाए, वो उसका मूल्य है, वो अमूल्य है। तो इस स्टोरी में बहुत बातें हमें सीखने को मिलती हैं जीवन में, जीवन के संघर्ष के बारे में। तो आपने क्या इसमें निष्कर्ष निकालना है ये आपके ऊपर है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मेरे मन में आया कि आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आज आप उदास हो, तो शायद इससे कुछ सीख के खुश हो जाओ और फिर दोबारा जीवन में आगे बढ़ने लगो। गॉड ब्लेस यू ऑल।